خوش آمدید ہمارے چینل انگلش اردو ٹیوٹوریل میں۔ آج ہم لوگ کلاس 12 کے اردو کے مضمون بہادر شاہ اور پھول والوں کی شعر جو مرزا فرت اللہ بیگ کے ذریعے لکھا گیا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو یہاں پہ دیکھیے، یہ سعودی علی الرحمٰن نے خوب لکھا ہے۔ ریت جو بیخ است وہ سلطان درخت اے پشر باسد اج بیخ سخت، یہ عربی میں لکھا ہے۔ تو اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں بہادر شاہ اور پھول والوں کی شعر۔ جو بہادر شاہ ہم جانتے ہیں کہ مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ، اور پھول والوں کی شعر، پھول والوں کی شعر مطلب یہاں پہ پھول والوں کی شعر جو ہے یہاں پہ ایک میلہ لگا تھا جس کا نام پھول والوں کی شعر تھا۔ تو اس میں جو ہے شعر کیسے ہوتا تھا اس کی کہانی ہے، یہاں پہ پڑھیں گے ہم لوگ۔ یہ جروحی کی مضبوطی تھی کہ دلی کا سرسبز شاداب چمن گرچہ حوادث زمانہ کے ہاتھوں پامال ہو چکا تھا، اور فلاقت کی بجلی اور باد مخالف کے جھونکوں سے سلطنت مغلیہ کی شوکت و اقتدار کے بڑے بڑے ٹہنے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تو یہاں پہ جو مضمون نگار فرت اللہ بیگ یہاں پہ بول رہا ہے کہ یہ جروحی کی مضبوطی تھی کہ دلی کا سرسبز شاداب چمن گرچہ حوادث زمانہ کے ہاتھوں پامال ہو چکا تھا، یعنی دلی کے بادشاہ، مغل خاندان کے جو بادشاہ تھے اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جو دلی کے جو بادشاہ تھے پہلے بہت مضبوط تھے، اس کی جڑیں ہو چکا تھا، اور فلاقت کی بجلیوں اور بعد مخالف کے جھونکوں سے سلطنت مغلیہ کی شوکت و اقتدار کے بڑے بڑے ٹہنے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ مصنف نے یہاں سلطنت مغلیہ کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ سلطنت مغلیہ کی جڑیں کافی مضبوط تھی، زمانے کی سرد و گرم ہواؤں نے ان کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا تھا، لیکن یہ جو بادشاہ تھے مغل خاندان کے یہ بہت مضبوط تھے۔ پھر بھی کسی بڑی سی طاقت کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس کے برائے نام بادشاہ کو تخت سے اتار کر دلی کو اپنی سلطنت میں شریک کر لے۔ پھر بھی کسی کے اندر وہ دم نہ تھی کہ بادشاہ کو ہٹا کر جو ہے اپنا تختہ پلٹ کر اپنا خود مختار حکومت جو ہے قائم کرے، یہ کسی کے اندر جو ہے ہمت نہ ہوئی۔ مراٹھوں کا جور ہوا، پٹھانوں کا جور ہوا، جاٹوں کا جور ہوا، انگریزوں کا جور ہوا، یہ سب جو تھے ان لوگوں نے حملہ کیا تھا مغل سلطنت میں، لیکن یہ لوگ بھی ہار گئے، مراٹھا ہار گئے، پٹھان ہار گئے، جاٹوں کا جور ہوا وہ بھی ہار گئے، انگریز آخرکار آئے اس کا تختہ الٹنے کے لیے، لیکن وہ بھی بعد میں ہار گئے، مگر دلی کا بادشاہ ہی رہا۔ اور جب تک دلی بالکل تباہ نہ ہوئی اس وقت تک کوئی نہ کوئی تخت پر بیٹھنے والا نکلتا ہی رہا، یعنی ہر ایک بادشاہ کے بعد ایک کے بعد دیگر جو ہے کوئی دوسرا بادشاہ بنتا گیا، اور اس بادشاہت کو ہمیشہ قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ دہلی کی ریزیڈنٹ نے بہت کچھ چاہا کہ بادشاہ کے اعزاز و احترام میں کمی کر دے۔ گورنر جنرل نے بڑی کوشش کی کہ شاہی خاندان کو قطب میں منتقل کر کے قلعہ پر قبضہ کر لے۔ کورٹ آف ڈائریکٹر نے بہت زور مارا کہ دلی کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا جائے، مگر بورڈ والے اس پر کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ دلی کا بادشاہ کیا ہے اور اس کے اثرات کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جو دلی کا ریزیڈنٹ تھا اس وقت، اس نے بھی چاہا کہ بادشاہ کی تختہ جو ہے وہ پلٹ دی جائے۔ بورڈ آف جو ڈائریکٹر تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اس میں جو ہے بورڈ والا جو تھا وہ راضی نہ ہوئے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دلی کا بادشاہ کیا ہے، اس کے اثرات کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے مباحثے ہوئے، یعنی اس میں بحث ہوئے، نوجوانوں نے بہت جوش و خروش دکھایا، مگر انگلستان کے جہاں دیدہ بڈھوں کے سامنے کچھ نہ چلی۔ انگلستان یعنی انگلینڈ کے آئے ہوئے جو یہاں پہ لوگ تھے اس کے آگے کچھ نہ چلی۔ جب بورڈ میں مسٹر ملکر، یعنی بورڈ کا جو ممبر تھا ایک مسٹر ملکر، اس نے کیا کہا، کھڑے ہو کر کہا، اجی جو میں 50 سال ہندوستان میں رہا ہوں، وہاں کے رنگ سے اچھی طرح واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ دلی کا قلعہ کیا ہے۔ سبھی نے یہ سوچا کہ بادشاہت کو ختم کر دیا ہے، لیکن ایک انگلستان کے جو ممبر تھے بورڈ کے مسٹر ملکر، اس نے یہ کہا کہ میں اس 50 سال سے ہندوستان میں ہوں اور یہاں کے رنگ سے اچھی طرح واقف، مطلب یہاں پہ میں اچھی طرح سے جو ہے جانتا ہوں یہاں کا
रंग के दिल्ली का बादशाह क्या है, दिल्ली का किला क्या है, इसको खत्म किया जा सकता है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मुझे मालूम है। उसकी बुनियाद अगर काबुल तक गई है तो दूसरी तरफ राजकुमारी तक, एक जानिब आसाम तक है तो दूसरी जानिब काठियावाड़ तक। उसने ये कहा कि ये सब जो है उसकी कायमो दायम है, यानी अगर वो काबुल तक फैली हुई है तो दूसरी तरफ राजकुमारी से, और एक जानिब आसाम तक फैला हुआ है तो दूसरी जानिब जो है काठियावाड़ तक फैला हुआ है। जरा किला को हाथ लगाया तो वो जलजला आएगा कि सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। मिस्टर मिल्टन ने सभी को ये कहा कि अगर किला को जरा सा भी हाथ लगाया तो वो जलजला आएगा, यानी हिंदुस्तान के लोगों के अंदर वो गुस्सा आएगा कि सबको जो है हिलाकर रख देगा। ये पुराने बादशाह जिस तरह चल रही है उसी तरह चलने दो, यानी ये बादशाह जो मुगल बादशाह चल रहे हैं जिस तरह भी उसी तरह चलने दो, एक के बाद दिगर जो बादशाह हो रही हैं इसको चलने दो। आखिर बोर्ड में बूढ़े जीते और नौजवान हारे। नौजवानों का ये कहना था कि मुगल बादशाह को ख़त्म किया जाए, लेकिन बुढ़े जो इंग्लिस्तान के आए हुए थे, बुढ़े कहने का मतलब यहाँ पे कि वह लोग जो अंग्रेज थे और हिंदुस्तान में कई सालों से ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो लोग जो है जीत गए, यानी उन लोगों का कहना हुआ कि बादशाह को ख़त्म ना किया जाए। दिल्ली का बादशाह इक़्तिदार जरूर कम हो गया, मगर जो अकीदत थी यानी जो मोहब्बत थी वो जैसी की वैसी रही। रियाया की वह कौन सी खुशी थी जिसमें बादशाह हिस्सा न लेते, और बादशाह का वो कौन सा रंज था जिसमें रियाया शरीक न होती हो। बात ये थी कि दोनों जानते थे और समझते थे कि जो हम हैं वो ये हैं और जो ये हैं वो हम हैं। तो यहाँ पे मुसन्निफ मिर्जा फतहुल्लाह बेग कह रहा है कि बादशाह के लिए जो है रियाया की बहुत मोहब्बत थी, रियाया के लिए और रियाया के लिए बादशाह की बहुत मोहब्बत थी, यानी रियाया की वो हर खुशी में बादशाह शामिल होते थे और बादशाह के हर गम में जो है रंज मतलब गम में जो है रियाया यानी आम अवाम जो है शामिल होते थे। और ये जानते थे और ये समझते भी थे कि जो हम हैं वो ये हैं और जो ये है वो हम हैं, यानी अगर कोई चीज़ बादशाह के लिए है तो अवाम ये समझते थे कि ये हमारे लिए भी है, अगर कोई चीज़ रियाया यानी आम अवाम के लिए होती तो बादशाह ये समझते थे कि हमारे लिए है, यानी एक दूसरे में उसकी जान बसे हुए थे। इसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज। सालम सानी के कत्ल के वाक़ई पर नज़र डालो। तो यहाँ पे देखिए यानी किस तरह हिंदुस्तान में मुगल शहंशाह, मुगल बादशाह और आम आदमी के बीच कैसी उसकी रिश्तेदारी थी, कैसी उसकी दोस्ती थी, उसकी एक कहानी है यहाँ पे। सालम सानी के कहानी पर यहाँ पे नज़र डालते हैं हम लोग। सालम सानी की जब कत्ल हो गया था उसका वाक़या यहाँ पे देखते हैं। देखो कि हिंदू मर्द औरतों को बादशाह से कैसी मोहब्बत थी और खुद बादशाह उसी मोहब्बत की कैसी कदर करते थे। आलमगीर सानी को फ़कीरों से बड़ी मोहब्बत थी। आलमगीर सानी जो मुगल बादशाह के जो हैं हुक्मरान थे, एक अहम हुक्मरान थे, उसको जो है फ़कीरों से बड़ी मोहब्बत थी, यानी फ़कीरों से वो बहुत फ़कीर नवाजी करने में आगे रहते थे। जहाँ सुन पाते कि कोई फ़कीर आया हुआ है उसको बुलाते, ना आता तो खुद जाते, उससे मिलते, बहुत कुछ देते और फ़कीर नवाजी को तौसिया आखिरत समझते थे, यानी फ़कीर नवाजी उसका पैसा बन गया था और उसको तौसिया आखिरत मतलब आखिरत का आमाल समझते थे, आखिरत का सामान उसको समझते थे कि फ़कीरों से मोहब्बत करने से ये जो है आखिरत का अमाल बन जाएगा। गाजिउद्दीन उस जमाने में दिल्ली का वजीर था। जो गाजिउद्दीन नाम का एक शख्स था, दिल्ली का वजीर था। खुदा जाने उसको बादशाह से क्यों दिली नफरत थी, किला में तो हाथ डालने की हिम्मत न पड़ी। ये जो गाजिउद्दीन जो यहाँ का वजीर था वो बादशाह से बहुत नफरत करते थे, यानी आलमगीर सानी से बहुत नफरत करते थे। अब क्यों नफरत करते थे वो खुदा जाने। वो किला में हाथ नहीं डाल सकते थे क्योंकि उसका इतनी हिम्मत नहीं हुई। धोखे से बादशाह को मारने का जाल फैलाया, यानी एक जाल बनाया जिसमें उसको फंसाया बादशाह को। किला में मशहूर कर दिया कि पुराने कोटला में एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े साहिब करामात हैं, बड़ा खुदा रशीदा है, मगर न ही खुद जाते हैं ना ही किसी को आने देते हैं। ये खबर फैला दिया गाजिउद्दीन ने दिल्ली में कि कोटला एक जगह का नाम है जहाँ पे एक बुजुर्ग आए हुए हैं और वो खुदा रशीदा है, यानी वो खुदा तक गया हुआ है। खुदा रशीदा उस शख्स को कहते हैं जो खुदा तक पहुंचा हुआ है, यानी खुदा से जो मोहब्बत करता है उसको खुदा रशीदा कहेंगे। तो ये खबर फैला दिया अब अवाम को
अवाम के सामने दहली में किसने गाजिउद्दीन ने के कोटला में एक बुजुर्ग आए हैं जो बड़े साहिब करामत हैं, यानी वो बहुत अल्लाह से मिला हुआ, खुदा से मिला हुआ है, वो किसी से मिलता भी नहीं है और खुद जो है किसी के पास जाता नहीं और किसी को आने भी नहीं देते हैं उसके पास। इधर बादशाह को मिलने का शौक हुआ, क्योंकि जो आलमगीर सानी थे वो फकीरों से बहुत मोहब्बत थी, बुजुर्गों से बहुत मोहब्बत थे, इसलिए उसको मिलने का शौक हुआ। इधर लोगों ने साहिब की करामतों के और पुल बांधे। नतीजा ये हुआ कि एक रात बादशाह तन तनहा किला से निकलकर कोटला पहुंचे। एक दिन ऐसा आया कि एक रात को जो है वो बादशाह आलमगीर सानी तन तनहा मतलब अकेले जो है किला से निकलकर कोटला पहुंचे, यानी उस कोटला नामी जगह में पहुंच गया। इधर उधर खंडरों में तलाश की तो यहाँ पहले ही से दुश्मन लगे हुए थे। 4 नमक हरामों ने एक बर्ज में से निकलकर बादशाह को शहीद कर दिया और लाश जमुना की रेती में फेंक दी, क्योंकि वहां पे जो गाजिउद्दीन नाम का शख्स था उसने वहां पे जाल रचाया था, एक वहां पे उसको जाल में फंसाया था बादशाह को, इसलिए उसके चंद नमक हरामों की मदद से जो है बादशाह को वहां पे कत्ल कर दिया और उसमें जो उसको जो है उसकी लाश को जमुना नदी की रेती में जो है फेंक दी। खुदा की कुदरत देखो, इधर से एक ब्राह्मणी रामकोर आ रही थी, एक ब्राह्मण औरत रामकोर जिसकी नाम थी वो उधर से आ रही थी। उसने जो लाश पड़ी देखी, जरा ठटकी, भागने का इरादा किया, फिर गौर किया तो देखती है कि ये तो बादशाह सलामत की लाश है। जब वो औरत ब्राह्मणी औरत रामकोर उस लाश को देखी तो जरा ठटकी, यानी डर से भागने की कोशिश की। जरा वो गौर करके देखा तो देखा कि वो जो है बादशाह सलामत की लाश है, यानी आलमगीर सानी की लाश है। रात भर उस बेकस शहीद का सर जानों पर लिए हुए बैठी रोती रही। सुबह जमुना जी के स्नान को लोग आए, उन्होंने भी लाश को देखकर पहचाना। वो औरत जो रामकोर नाम थी, उसने अपने उस लाश को, बादशाह की लाश को अपने जान में यानी अपने पैरों में लिए हुए बैठी रोती रही और पूरी रात जो है जागी रही। सुबह जब सुबह हुई तो जमुना के स्नान मतलब गुस्ल करना, तो गुस्ल करने के लिए जमुना नदी में जब लोग आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये बादशाह है। तमाम शहर में खलबली पड़ गई। इस बेकस शहीद के लाश दफन हुए शाह आलम सानी बादशाह हुए। उसके फर्जन जो थे, शहजादे जो थे शाह आलम सानी, इसके बाद जो है जब दफन होने के बाद उसका बेटा शाह आलम सानी बादशाह हुए। उन्होंने रामकोर को बुलाया, बहुत कुछ इनाम अकराम दिया और उस ब्राह्मणी को अपना मुंह बोली बहन मान लिया, क्योंकि रामकोर उस रात जो है पूरी रात बादशाह आलमगीर सानी की हिफाजत की थी, लाश की हिफाजत की थी। इसलिए अब जो बादशाह हुए शाह आलम सानी उसके बेटे, तो उसने जो है उसको अपनी मुंह बोली बहन मान लिया और बहुत सारे इनाम दिया उस ब्राह्मणी औरत रामकोर को। थोड़े दिनों में सुलोनो का त्योहार आया, यानी एक त्योहार आया जिसका नाम सुलोनो थोड़े दिनों के बाद आया। भाई के लिए बहन मोतियों की राखी लेकर पहुंची। भाई के लिए, क्योंकि भाई उस वक्त बादशाह थे शाह आलम सानी, तो उसके लिए जो है मोती की राखी बांधकर मोतियों की राखी जो है लेकर आए उस औरत ने, ब्राह्मणी औरत ने। बादशाह ने खुशी खुशी राखी बंधवाई, बहन को जोड़ा दिया, यानी एक जोड़ा कपड़ा दिया। उसके रिश्तेदारों को खलत दिए। खलत मतलब वह कपड़े जो बादशाह की तरफ से इनाम अकराम दिए जाते हैं, उसको खलत कहते हैं। लीजिए राखी बंधन की रस्म किला की रस्मों में शरीक हो गई। इस तरह हर रस्मों में जिस तरह हर रस्म मनाए जाते थे किला में, ठीक उसी तरह राखी बंधन एक त्योहार बन गया उन लोगों के लिए, रामकोर और बादशाह शाह आलम सानी के लिए। हर साल ये रस्म, ये राखी बंधन मनाए जाते थे। जब किला आबाद रहा, उस ब्राह्मणी के खानदान और किला वालों में भी भाईचारा रहा। उस ब्राह्मणी औरत के खानदान थे और जो किला जो बादशाह थे, उन दोनों के दरमियान जो है भाईचारा हमेशा के लिए कायम हो गया। हर साल राखियां आते, बादशाह और शहजादों के बांधी जाती। हर साल राखियां आती और उस ब्राह्मणी खानदान की जितनी भी औरतें थी सब जो है शहजादों और बादशाह को राखी बांधते थे। जोड़े दिए जाते, यानी जोड़े दिए जाते मतलब बादशाह के जरिए जो है ब्राह्मणी औरत के खानदान को सभी को जो है कपड़े दिए जाते थे। ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बादशाह से किला छूटा। ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बादशाह से किला छूटा। इसके कहने का मतलब यह है कि जब बादशाह की बादशाहत खत्म हुई, मुगल शहंशाहियत खत्म हुई, उसी वक्त जो है ये सिलसिला छूटा। ये सिलसिला मतलब ये जो राखी बंधन की त्योहार थी, रस्म थी, यही सिलसिला से मुराद वही है। तो इस कहानी से हमें ये पता चला
कि आम अवाम और मुगल शहंशाहियत या मुगल बादशाहत के दरमियान कैसा रिश्ता था, वो लोग कैसे रहे थे पहले। तो यहाँ पे देखिए फिर नीचे पैराग्राफ चेंज है। फूल वालों की शेर भी उसी मोहब्बत बाहिमी का नतीजा थी। ये कि अकबर शाह शाह ने अपने मंजिले बेटे मिर्जा जहांगीर को वली अहद बनाना चाहते थे। देखिए यहाँ पे एक अलग कहानी है, ये शाह आलमगीर शाह की कहानी थी ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक फूल वालों की शेर एक अलग कहानी है, जिसमें जो बादशाह है वो अकबर शाह शानी है और वो अपने मंजिले बेटे मिर्जा जहांगीर को उसके मरने के बाद मिर्जा जहांगीर को वली अहद बनाना चाहते थे। तो ये अलग कहानी है, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। देखिए सिराजुद्दीन जफर बड़े थे, मगर बाप बेटे में सफाई न थी। जो अकबर सासानी थे उसका जो बड़ा फर्जंद था, बेटा था, सिराजुद्दीन जफर था, लेकिन अकबर सासानी अपने मंजिले बेटे मिर्जा जहांगीर को वली अहद बनाना चाहते थे। हालांकि सिराजुद्दीन जफर को बनना था, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है बाप बेटे में जो है सफाई न थी। मिर्जा जहांगीर को बादशाह बहुत चाहते थे, जो उसके बेटे मिर्जा जहांगीर मंजिले बेटे थे वे बहुत चाहते थे। और क्यों ना चाहते, मिर्जा की वालिदा नवाब मुमताज महल का किला में जोर था। बादशाह सलामत और बादशाह बेगम दोनों ने रेसिडेंसी में कोशिश की कि किसी तरह मिर्जा जहांगीर वली अहद हो जाए। दोनों यानी जो मिर्जा अकबर सासानी के जो बेगम थी वो भी यही चाहती थी कि मुमताज महल जो थी वो भी ये चाहती थी कि अपने मंजिले बेटे जो है मिर्जा जहांगीर को वली अहद बनाया जाए। इस जमाने में दिल्ली के रेसिडेंट इस्टीन साहिब थे। उस जमाने में दिल्ली का जो रेसिडेंट था वो इस्टीन नाम का एक शख्स था। ऐसा बादशाह परस्त अंग्रेज हिंदुस्तान में शायद ही कोई आया हो तो आया हो। अकबर शाह की वो ऐसी इज्जत करते थे जैसे अपने बादशाह की करते थे। टोपी उतारकर मुजरागाह से आदाब बजा लाते, कुर्सी दी जाती तो बादशाह के सामने कभी ना बैठते। ये जो इस्टीन साहब थे वो हमेशा अकबर शाह सानी की इज्जत क्या करते थे और हमेशा अपने बादशाह की तरह जो है उसकी इज्जत करते थे। और मुजरागाह से आदाब बजा लाकर कुर्सी दी जाती तो बादशाह के सामने कभी ना बैठते। मुजरागाह मतलब होता है रक्सगाह, यानी जहाँ पे डांस होती है। और उस बादशाह के सामने जो है इस्टीन साहब कभी कुर्सी लेकर नहीं बैठते थे। गुफ्तगू में आदाब सही मलहूज रखते। हमेशा जब बादशाह गुफ्तगू में मुब्तला रहते तो उसमें आदाब सही यानी डिसिप्लिन के साथ रहते थे। कौन? ये जो इस्टीन साहब है वो बादशाह की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते, गर्ज सब कुछ करते, मगर इस बात पर राजी ना होते थे कि मिर्जा जहांगीर वली अहद हो। हर तौर से इस्टीन साहब बादशाह की हिफायत इज्जत करते थे और हर तौर से उस आदाब से पेश आते थे, लेकिन इस बात पर नाराज थे, राजी ना थे कि मिर्जा जहांगीर को वली अहद हो, क्योंकि इसका बड़ा बेटा अभी जिंदा था सिराजुद्दीन जफर। इससे जो है वो मुत्तफिक नहीं थे। बजाहिर इसकी वजह एक थी कि वह सिलसिला तख्त नसी को दरहम बरहम करना नहीं चाहते थे, और दूसरी वजह ये थी कि मिर्जा जहांगीर के आदत व एतवार से मुतमईन न थे। ये जो इस्टीन साहब थे वो मिर्जा जहांगीर के आदत व एतवार से मुतमईन न थे, यानी उसके आदत उसको पसंद न थे। मिर्जा जहांगीर बला के पीने वाले और गजब के मुफट, इस मुखालिफ दे दिलों में बैर तो पड़ ही गया था। एक दिन सरे दरबार मिर्जा जहांगीर ने इस्टीन साहब को लोहे बे कह दिया। साहब किसी तरह पी गए। थोड़े दिन बाद ये गजब किया कि उन पर गोली चलाई। मिर्जा जहांगीर इस बात से बहुत नाखुश थे कि इस्टीन साहब वो पसंद नहीं करते थे, वली अहद बनने से रुकावट करते थे। इस बात से जो है मिर्जा जहांगीर बहुत नाखुश थे, इसलिए उसने जो है गलत जुबान से इस्टीन साहब से पेश की, उसको ये बात बोल दिया लो लोहे बे, ये बात जो है कह दिया। तो ये बात किसी तरह तो पी लिया, किसी तरह ये बात सह गया इस्टीन साहब। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हुआ कि इस्टीन साहब के ऊपर जो है मिर्जा जहांगीर ने एक नाकाम कोशिश कर दिया। जो नाकाम कोशिश किया था उस पर गोली चला दी। गोली चलाई, लेकिन बाद में जो है मिर्जा जहांगीर जो है नहीं मरा, उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि वो बच गया था किसी तरह। आखिर कहाँ तक तरह दी जाती, कैद होकर इलाहाबाद गए। इस तरह इस्टीन साहब ने मिर्जा जहांगीर को कैद कर लिया और इलाहाबाद भेज दिया गया। मुमताज महल को बड़ा सदमा हुआ। जो उसकी माँ थी मुमताज महल बेगम साहिबा, मिन्नत मानी कि मिर्जा जहांगीर छूट कर आएंगे तो हजरत बख्तियार काकी अली रहमा के मजार पर चादर और फूलों की मसहरी चढ़ाएंगी। खुदा की कुदरत
और स्टीन साहब की शराफत देखो कि उन्हीं की सिफारिश पर शाह आलम सानी साहब कैद से रिहा हुए। उसने उसकी अम्मी मुमताज महल ये मिन्नत मानी, ये दुआ की कि मेरा बेटा जो है अगर उस कैद से छूटकर आए तो जो है वो बख्तियार काकी अली उर रहमा के मज़ार पर जो है चादर चढ़ाएगी, और इसी तरह उसकी दुआ जो है कबूल हो गई। और स्टीन साहब की शराफत देखो, कोने की सिफारिश पर साहिब आलम स्टीन साहब ने जो है उस कैद से उसको हटाकर जो है लाया था। बादशाह बेगम ने मिन्नत बढ़ाने की तैयारियां की, बड़ी धूमधाम से चादर चढ़ी गई। शहर भर के तमाम हिंदू मुसलमान शरीक हुए। कुतुब में कई दिनों तक मेला लगा रहा। फूल वालों इसी तरह जो बेगम साहिबा थी उसकी मकसद पूरी हो गई, उसकी मिन्नत पूरी हो गई, तो उसने बख्तियार काकी की मज़ार पर फूलों की मसरी चढ़ाने की प्रोग्राम जो है शुरू कर दी थी। तो इसी तरह तैयारियां शुरू हुई, धूमधाम से चादर गई। शहर भर के तमाम हिंदू मुसलमान शरीक हुए उस दिल्ली के उस किला में। कुतुब में कई दिनों तक मेला लगा रहा। फूल वालों ने जो मसरी बनाई तो उसमें खूबसूरती के लिए एक फूल का पंखा भी लटका दिया। सिराजुद्दीन जफर वली सल्तनत ने पंखा कहकर गुजारना। इसी तरह सिराजुद्दीन जफर को जो है वली अहद बना दिया गया। ये शेर है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे हम पढ़ते हैं, बादशाह को ये मेला बहुत पसंद है। जो अकबर शाह सानी थे उसको बहुत पसंद है। दिल्ली वालों से कहा कि अगर हर साल भादों के शुरू में ये मेला हुआ करे तो कैसा। ये मेला, क्योंकि इस मेला में हिंदू मुसलमान सबको ही शामिल थे, तो बादशाह को ये बहुत पसंद आया और बादशाह ने ऐलान कर दिया कि हर साल भादों के महीने के शुरुआत में, जो भादो एक महीने का नाम है जिसको बंगाली में भादो कहा जाता है, तो ये मेला उसी महीने में जो है शुरू होगा। ये बात बादशाह ने ऐलान कर दिया। मुसलमान दरगाह शरीफ पर पंखा चढ़ाए, हिंदू जोग माया जी पर चढ़ाए। दोनों के लिए प्रोग्राम यहाँ पे थी, इसलिए मुसलमान और हिंदू इसमें शामिल होते हैं। मुसलमानों के पंखे में हिंदू और हिंदुओं के पंखे में मुसलमान शरीक हो, ये ऐलान जो है बादशाह की तरफ से यानी अकबर शाह सानी की तरफ से हुआ। मेला का मेला हुआ और दोनों कौमों में मिलजुल बढ़े। भला नेकी और पूछ दिल्ली वाले राजी हो गए। लीजिए फूल वालों की शेर की बुनियाद पड़ गई। इसी तरह इस मेले के नाम जो है फूल वालों की शेर पड़ गई और दिल्ली के तमाम अवाम जो है इस मेला से जो है खुश हुए, क्योंकि इसमें जो है हिंदू मुस्लिम दोनों शरीक होते थे इस मेला में हर साल भादों के महीने में। बादशाह सलामत खुद कुतुब जाते, वहां रहते, शहजादे मेला में शरीक होते। बढ़ते बढ़ते ये मेला कुछ का कुछ हो गया। उसी जमाने में ये गाना चला, कुतुब को चला मेरा अकबर हटेला, न रस्ते में जंगल न मिलता है टीला। तो इस कहानी में भी ये सबक मिलता है कि आम अवाम और बादशाह के दरमियान कैसा रिश्ता था। यानी आम अवाम हर बादशाह के हर खुशी में शामिल होते थे और बादशाह के हर गम में जो है आम अवाम के हर गम में जो है बादशाह शामिल होते थे। तो इस दोनों कहानी से हमें ये सबक मिला कि बादशाह और फूल वालों की शेर में कैसा रिश्ता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट। गुड बाय।